دین کی روح کیا؟ لا الہ لا الہ اللہ کیا، جس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں بہر حق در خاک ہوں غلطی داس بس میں لا الہ الا اللہ۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو لوگوں نے کہا کہ وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن گیا، کیوں؟ لا الہ تو پہلے بھی پڑھتے تھے، وہ لوگ بھی پڑھتے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، جماعتیں ہو رہی تھیں۔ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کیا ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔ ترجمہ یہ ہے جو ہے نا قبروں کو نہ پوجو مدے نہ منگو، یہ توحید کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ اور میں نے سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ ماموں قانون کے جلسہ میں خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا حدیثوں تمہاری بس توحید جو ہے وہ مردوں سے متعلق، مردے مدد نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں کہ مردے ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ وہ تو بیوقوف لوگ پوچھتے ہیں۔ یہ زندہ فضاؤں کو تم چیلنج کرتے ہو جن کے پاس جیلیں ہیں، پھانسیاں، کڑیاں، کوڑے ہیں، ان کی کبھی بات نہیں کرتے۔ یہ توحید بالکل تم نے گم کر دی، حالانکہ پوری سورہ نساء میں اسی شرک کا بیان اتحاق میں رہتا کہ کوئی انسان اپنے قانون ملک میں جاری کرنا شروع کر، بندہ ہوتے ہوئے وہ لوگوں کو اپنے قانونوں کا پابند بنائے۔ یہ ہے وہ غلامی ابدیت جس کو ختم کرنے کے لیے نبی رسول اللہ۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی نا سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ کہتا ہے عام لوگ تو گزار ہے، حکمران اور مولوی اور پیر، نبی تک کو حق نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکم اور نبوت دے اور وہ لوگوں کو کہے میرے بندے بن جاؤ، غلام بنا دے، نہیں بنا سکتے۔ پیغمبر کو حق نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام بنائے، غلام صرف اللہ کے ہم کسی کے غلام نہیں۔ تو یہ غلامی کا دور شروع ہوا، لوگوں کو لالچ کے ذریعے اور خوف کے ذریعے غلام بنا دیا۔ پہل شروع ہو گئی تھی، مونا اس کا یزید کے دور میں بھی سامنے آ گیا کہ یعنی نے امت کو اس راستے سے ہٹا دیا جو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین نے کیا۔ ایک معمولی عورت اٹھ کر مدینے میں کیا جی عمر تم غلط کہہ رہے، اور عمر کی مجال نہیں تھی کہ اس کو بیٹھ جا مطمئن کر، اور کئی مرتبہ ماننا پڑتا تھا کہ عورت نے ٹھیک کہا مرد غلط کیا۔ یہ حریت تھی، آزادی تھی۔ معمولی آدمی کیا دیتا تھا مدینے میں کہ لا نسمع ورن تھی۔ امیر المومن کہتے ہیں لوگوں میری بات سنو مانو، آدمی کھڑا ہو گیا، نہ سنیں گے نہ مانیں، کیوں؟ جو چادریں مالے غنیمت میں آئی ہیں وہ اتنی چھوٹی ہیں کہ میرے جیسے آدمی کی قمیص نہیں بنتی، آپ اتنے لمبے ترنگے ہیں، آپ نے قمیص پہن رکھی، اگر دو نہیں ہے آپ خائن اور بددیانت، خلیفہ نہیں بن سکتے۔ تو امیر المومن بیٹے کو اشارہ کرتے ہیں، عبداللہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے چچا جی آپ نے ٹھیک کہا، میرے حصہ میں جو چادر تھی میں نے اپنا بھائی، اس نے کہا بات کرو سنے کے بعد۔ یہ حریت تھی، آزادی جو اللہ کے رسول نے عطا کی۔ یہ لوگ کافر نہیں ہوئے، نہ کلمہ چھوڑ گئے، شاید جنت میں اونچے مقاموں پر بیٹھے ہوں، جیسے محدثین کہتے ہیں کہ ہم جن راویوں کا بیان کرتے ہیں کہ یہ کذاب ہے، یہ جھوٹے ہیں، ان میں سے کئی جنت میں بیٹھے ہوں گے، مگر ہم کیا کریں کہ دین کو بچانے کے لیے، سنت کو بچانے کے لیے ہمیں نشاندہی کرنی پڑتی کہ یہ راوی جھوٹا۔ جنت دوزخ کا یہ معاملہ نہیں، یہ بحث کو الجھا دیتے ہیں لوگ کہ آپ کیوں کرتے ہیں، وہ بخشا گیا، ہمیں تکلیف ہے بخشا گیا۔ ہم کہ وہ حریت، وہ آزادی جو اللہ کے رسول نے دی تھی، اور اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں تھا۔ انسان آزاد ہو گئے تھے، بڑے کو بڑے آدمی کو کہتے تھے کہ اس بات پر ہمیں مطمئن کرنا پڑتا تھا۔ مگر یہ بات کیا ہوئی؟ علامہ اقبال کی زبان میں سنا، یہ انحراف، یہ موڑ خدا کے لیے سمجھو اور دوبارہ لوٹو اس خلافت کی طرف، ورنہ تمہاری بگڑی نہیں ساری۔ جب تک یہ ملوکیت رہ گئی، 1400 سال آ رہی مسلمان ملکوں میں، ان کے ہوتے ہوئے دین نہیں آئے، مذہب چلتا رہے گا۔ یہ لوگ عمرے کریں گے، مدینہ شریف حکمران جائیں گے، اور کبھی کبھی صوفیوں کی محفل کرا دیں گے، کبھی کوئی مدرسے کو امداد کر دیں گے۔ یہ ڈھونگ ہمیشہ ملوک مچاتے رہیں، ایسا کرتے رہیں کہ لوگ بیوقوف بنے رہیں، مگر اصل دین جو ہے نا کہ امت آزاد مساوی ہوں، اسی کٹہرے میں کھڑا ہوں، اسی میں صدر منکر کھڑا، اور قاضی فیصلہ کرے کہ یہ حق پر ہے اور آپ حکمران غلط۔ یہ آزادی جو اللہ کر سکتے، مگر یہ چھین لی نا، کیوں خلافت رشتہ قرآن کو سیخ حریت را زہر اندر کام۔ آپ کس کو رو رہے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی، یہ تو بات ہی نہیں۔ تم جو عقیدہ رسول نے دیا تھا کہ لوگ کسی کے غلام نہیں ہیں، صرف اللہ کے غلام ہیں، جو حکمران ہے وہ ان سے بڑھ کر اللہ کا غلام ہے۔ یہ اگر حکم کی نافرمانی بھی کریں یا دین کی اطاعت میں کوتاہی کریں کوئی بات نہیں، حکمران کو ان سے بڑھ کر خدا کا غلام ہونا چاہیے۔ مگر ہوا یہ، کیوں خلافت رشتہ قرآن سے، خلافت نے، حکومت نے قرآن سے اپنا تعلق توڑا۔ یہ سیکولرزم آ گیا، لبرلزم، نماز رہی، روزے رہے، سب کچھ ہوتا رہا،
जिहाद के नाम पर जिहाद भी होते रहे, मगर पब्लिक को कह दिया कि आप इबादत की हद तक आजाद है, मस्जिदों में अल्लाह करें, हुकूमत के मामलात में आप दखल नहीं दे सकते, हमारी मर्जी होगी, जो चाहेगा कानून मानेंगे, जो चाहेगा बेशक कुरान और सुन्नत में होगा छोड़ दें। इसलिए इस मोड़ को खुदा के लिए समझें कि बड़ा मोड़ उम्र, और जो बहुत कि हर मुसलमान मुल्क में ऐसा ही मर्द बैठा हुआ कि अपनी मर्जी कर रहा, और बजाते खुद वो यही समझता है कि मैं दीन का खैर खा, उम्मत के मुफाद चली करूं। वो कब कहते हैं हम उम्मत के गद्दार, मगर दीन को उन्होंने पुश्ते हुकूमत की हद तक उन्होंने बिल्कुल बेदखल कर दिया। अगर कोई बात मानी है तो उनकी पसंद की थी, मान ली, दीन समझ कर नहीं मानी। क्यों खिलाफत रिश्ता से हुर्रियत तेरा जहर है अंदर काम रहे, आजादी के गले में जहर के कतरे टपका दिए कि बोलने नहीं किया था। और वक्त आ गया 3 साल बाद, लोगों को नजर नहीं आता था, हुसैन को तो नजर आता था, उनको अल्लाह ने बसीरत दी थी। लोग ये देखते हालात नहीं है, ये होगा, जानते थे हालात नहीं, और कहते खामोश रहो तो ये तो मुक्त जाएगी कि जो हो रहा ठीक हो रहा। ये बताना चाहिए कि अल्लाह के रसूल के तरीके से हट क्या मिलकर मुसलमानों के सीनों में ये बातचीत तो रहे तसल्लुत, और ये ख्याल कि ये खिलाफत नहीं, इस्लामी हुकूमत नहीं है, ये शौक और तरबरा शायद कभी ये बहाल कर ले। अगर मान कि ठीक हो रहा क्यों बनेगा, परवाह नहीं, सब कुछ आजादी का गला क्यों। अब्दुल मलिक बैठा हुकूमत पर यजीद के 4 साल बाद, उसने अपने पहले खुतबे में कहा कि तुम लोग क्या देते थे खलीफे को कि अल्लाह से डर, आज के बाद जिसके मुंह से निकला ना कि अल्लाह से डर, उसकी गर्दन उड़ जाएगी। मैं नहीं सुनना चाहता कोई मुझे कहता कि अल्लाह आइए करो, जो खलीफे कह सुनाओ हमें, हम जब गलती करें तो कि अल्लाह से रोक। जिसने कहा वलीद बिन अब्दुल मलिक खुतबा दे रहा, खिलाफत की मिट्टी पलीद हो गई और नमाज जुमा का वक्त गुजर गया, असर का भी वक्त आ रहा, तो एक ताबी ने खड़े होकर आले साहबा में इमाम इब्न हजर के पढ़े नेक ताबी खड़ा हो गया। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, ना रसूलुल्लाह के बाद कोई नया नबी आया, ना कोई किताब, वक्त नमाज का जा रहा, खुदा के लिए नमाज पढ़ा, क्या बदला मिला उसको? सिपाही महल में ले गए, सट कर लाख मस्जिद में पहन। ये मोड़ था जो मुड़ रही थी गाड़ी, लोग यही समझते कोई फर्क नहीं, नमाज हो। इमाम जानते थे क्या ये लाइन मालूम था करीब ही है, ये दूर हो जाएंगे, बिल्कुल रास्ते तो दे जाएंगे, लोग में शराब पीने वाले खलीफे बनेंगे, और बने। लोगों ने देखा वहां महफिल राइयां की, वहां बैठकर शराबें पी। हुसैन रज़ी ने इस वक्त देखा कि मेरे सिवा इसका कोई मुकाबला नहीं, ये काम बड़ा, इसके लिए बड़े आदमी। अब उससे बड़ा कौन हो सकता था जिसके बारे में पूरी उम्मत जानती, कोई गिरोह इससे मुनकर नहीं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया सय्यदा शबाब अहल जन्नत हसन, जन्नत के जवानों के सरदार हसन और हुसैन। अब जन्नत के सरदार की कुर्बानी मांगी गई। तुम जान दो शायद उम्मत जो ना इसको जलजला आए, जो बेहोश हो चुके ना, कोई थोड़ा सा इनमें इर्तियाश पैदा हो, हरकत पैदा हो, चीता। और जब कई लोगों ने मशवरा दिया कि अगर आप नहीं मानते तो खुद चले जाएं, ये बच्चे और औरतें क्या करेंगी, कैसा जवाब था? इमाम दूर देख रहे, लोग उस वक्त को देख रहे थे, वो भी जानते थे कि मैं कत्ल हो जाऊंगा, ये कैद हो जाएंगी, सारी जिल्लत और रसवाई होगी, मगर आपने फरमाया शाअल्लाह इस वक्त अल्लाह को यही पसंद है कि मैं कत्ल हो जाऊं और ये मेरी बहनें कैदी हो जाऊं, इसके बगैर बात नहीं बनी। इन्होंने शिकंजा कस कर उम्मत को बिल्कुल चुप करा नहीं। इसलिए खुदा के लिए ये बातें जो अहले हदीस और जो बंदी सब छोड़े, खिलाफ छोड़े। इमाम हुसैन को दुनिया नहीं रो रही, जिन्हों लोग शहीद होते हैं उनको दर्जा मिलता, मगर उम्मत के साथ जो सानिया गुजरा कि गला कूट दिया उम्मत का, बोलने। तो यजीद के बारे में ये सही बुखारी किताब देखें आप, इसमें बाब है इसका कि बादशाह की तारीफ कर, यानी खुशामद जो मरूकियत का नतीजा कि जालिम जब बैठ जाते हैं और उनका फरमान ही कानून होता है, कोई अदालत नहीं, कोई फैसला नहीं, अदालतें कहती रहती हैं कि यह जश्न नहीं होगा, वो कहता है होगा, तब चीज से चुप करते। ये जिसको है झूठी तारीफ नहीं करनी, सुल्तान वैसा खराज क्या वगैरह सदी चंद क्या बना उम्मत कि बादशाह के पास जाते हैं और बातें करते हैं, बाहर निकलते हैं और उम्मत मुनाफिक मामूली बंदे नहीं, ताबीन और तुलसी के लोग। चनाचे हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से लोगों ने कहा
7178 नंबर है सब। और किताबुल अहकाम का बाब 27 नंबर है, उन्वान ये है मा युकरा मिन सवात। मुसलमान ऐसे हो गए जो हक कहते थे, हाँ? झूठ बोलते, खुशामदे करें। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से कहा कि हम अपने सुल्तान के पास जाते हैं तो उनको ऐसी बातें कहते हैं जो असल में हम उनको नहीं सही। जब निकलते हैं जब उनके पास से बाहर आते हैं तो और बातें करते हैं, उनके मुंह पर कहते हैं तुम हक करते हो, ये सही है, दुरुस्त है, जैसे खुशामद। ये मुल्कियत का लाजमा है। जहाँ एक फर्क की बात सही होगी वहां खुशामदी लोग पैदा हो जाएंगे। वो समझते कि इसको राजी रखने से उल्लू सीधा होगा, वरना नहीं। आप देख रहे हैं, मैं मिसाल नहीं नाम देकर दूंगा, आपके तो सबके सामने फौरन परिंदे उड़कर उस टानी पर जा बैठते हैं। काला कुन्न निफाक। तो अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा हम तो इसको मुनाफिकत शुमार करते। रसूलुल्लाह ने जो दीन दिया था उसमें तो मुनाफिकत थी कि बादशाह के पास और करो और बाद में ये कौन था, इसकी भी तशरीह नीचे इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह ने फरमा दी। ववाका इब्न अबी शैबा min तरीक अबी शासा काला दाखल कौमुन अला इब्न उमर फवाकू फी इब्न मुआविया। और पता तो सबको था। ये कहते हैं नहीं, अगर हुसैन सच्चा था लोगों ने बोला, लोग बोलते थे मगर सामने नहीं बोलते। हुसैन सामने बोला, वरना जैसे इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उम्मत का एक शख्स भी ऐसा नहीं था जो यजीद को हुसैन के मुकाबले में अच्छा था। सिर्फ दौलत उमविया जो थी दुश्मन थी उसकी, वरना मुसलमानों के सीना में उसकी मोहब्बत पहुंची। सब जान, इसलिए अजीम इंसान को निकलना पड़ा, जन्नत के जवानों के सरदार को। और मैं आप तक पहुंचा दूं जो हुसैन का दुश्मन है, रसूल का दुश्मन। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह रिवायत करते हैं, मुस्नद अहमद है, मुस्तदरक है, साफ फरमाया मन अहब्बल हसना वल हुसैना फक़द अहब्बनी। जो हसन और हुसैन से प्यार करता है वो मुझसे प्यार करता है। वो मन अबग़ज़हुमा क़द अबग़ज़नी। जिसके सीने में इनसे दुश्मनी है वो मेरा दुश्मन, रसूल का दुश्मन है। ये रसूल से अलग नहीं है। और आप सही बुखारी में फज़ाइल अहले बैत में पढ़ें, ज़हर में भी अल्लाह ने इनको अपने नाना की तरह बनाया। सचमुच थे भी वही और साफ, मगर शक्ल भी यही थी कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी से एक शख्स ने कहा मैंने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा। आपने फरमाया हुलिया पहन कर। उसने कहा बे हसन इब्न अली जो है बिल्कुल इनके मुशाबे। आपने फरमाया तूने बाकी सही बात है कि हसन सर से पांव तक रसूलुल्लाह के सामने। और जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का इमाम बुखारी तिरमिज़ी लिखते हैं नामुराद, उसका दरबार था, वो हजरत हुसैन रज़ी की नाक पर छड़ी मार रहा था और कहता क्या हुस्न है इसमें, लोग कहते हैं बड़ा हसीन है। तो हजरत अनस ने कहा अल्लाह की कसम हुसैन अल्लाह के रसूल के सर से पांव तक मुशाबे। ये ताना दे रहा है अगर ये हसीनी जो रसूलुल्लाह से मुशाबे रहा है तो और कौन हसीन हो। तो लोगों ने ये सब कुछ देखा। ये हजरत हुसैन से कुछ छुपा हुआ नहीं था, मगर वो जानते थे कि अगर चुप रहे हैं तो यही होगा कि बड़े बड़े उलमा जो है ना वो खुशामदी बन जाएंगे, मुनाफिक हो जाएंगे, बाहर कुछ कहेंगे अंदर कुछ। तो लोग गए वाकूफी यजीद इब्न मुआविया। तो अब्दुल्लाह बिन उमर के पास उन्होंने यजीद को बहुत बुरा भला तो कहा तकुलून हादा फी वजूहिन। तो आपने फरमाया कि तुम उनके मुंह पर भी ये कहते हो, ये दीन तो कहते हक को। ये अल्लाह के रसूल और खुलफा ने इसका मगर बाद में नहीं रहने दिया। मैं क्या करूं और दूसरे के घर मार मार कर लोगों कर दिया, कुछ को लालच दिया। जैसे इसी किताबुल फितन में आप पढ़े इमाम इब्न हजर फरमाते हैं लाख लाख रुपया अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को भेजा, अब्दुल्लाह बिन उमर को भेजा कि लाख लाख ले रहे और यजीद की बैत। उन्होंने कहा हमारा दीन फिर बहुत सस्ता हो। लालच भी इसने देना शुरू किया खुदा के लिए। हदीसें देखे, तारीख को आप लगाए, ये सब तारीखें लिख रहे हैं मजल्ले और दूसरे तबरी जो झूठी है वो करते हैं। बे आप हदीस की किताबें क्यों नहीं पढ़ते कि दीन पर क्या क़यामत गुजर रही थी, उसका जिक्र नहीं करते तुम लोग, अल्लाह का खौफ नहीं तुम्हारे दिलों में। तो उन्होंने कहा नहीं, उनके मुंह पर बल नमता मनुष्य उनकी तारीफ करते हैं, उनकी मजाक करते हैं। अब देखें ये मुनाफिकत है कि नहीं, अब सारे कर रहे हैं, कोई वजीर इत्तलाआत है कोई कर रहा है, जानते सब झूठ है मगर नहीं। मुल्कियत जो है ये वो करवाती बादशाह को खुश करने के लिए। तो दूसरी रिवायत में भी वो भी लिखी कि अतैत इब्न उमर फकुल तो इन्ना नजलिस अइम्मतना हाउला फयतकल्लमून फी शैइन ला नअमल गैर फनुसद्दिक। इब्न उमर के पास मैं गया तो मैंने कहा हम इन हाकिमों के पास बैठते हैं तो वो बात करते हैं, हम जानते होते हैं कि ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, मगर हम उनको कहते हैं आप सच बोल रहे हैं, इस पर आप सुन लें
کہ یہ کہاں امت کو رہ جاتی. غیرت گئی، سچ گیا، ضمیر کی مخالفت شروع ہو گئی کہ اکبر گریٹ، اکبر یار بے دین ہو گیا. خیر وہ موضوع الگ. ایک دن اس نے کہا کہ میں بینگن کھانا چاہتا. ابو الفضل نے ایک قصیدہ نظم کر، بینگن کی تعریف، بینگن ایسا بینگن ایسا. کو اگر کھایا گلا بیٹھ گیا.